and we have done two methods. One is the graphical method, which I think is most of the class is clear with, and the second method which we did was in linear programming was simplex method. There are many more methods, but we'll just focus on simplex method. So in today's video I would make you learn that how to use simplex method to go for linear programming. In order to apply this simplex method, there are three conditions which must be satisfied. Number one, that objective function which is written over here, you can see maximize z, that should be in maximization form. All the constraints should be in less than equals to form, and the third condition is that this is x1, x2, x3, x4, these are variables and they should be as positive or greater equals to 0. So this is called non-negativity constraint. So the given problem which I have taken from your quiz has all the standard conditions satisfied, which is required for a linear programming problem to be solved using the simplex method. So let's continue with the simplex method now. So what do we do in the simplex method? Okay, there are two things which you need to understand. One is method and second is algorithm. So since this is a equation which contains four independent variables, four variables in it, so I can't really plot it and diagram which can help you understand the algorithm, but I have already discussed it in the class in detail, so I'm hoping that you have pretty good idea about that how the algorithm works. So in linear programming, what do we do? That we start with a minimum, and that minimum is z is 0. Now what our objective is to maximize z, but we start with the point that let's say z is 0. Then of course then z will be 0 at origin, where x1, x2, x3, x4 all are zeros. So the first thing is कि algorithm starts from origin. ठीक है, start कहाँ से करता है? ये origin से, and origin के ऊपर क्या होता है? z 0 होता है, क्योंकि x1 is equals to x2 is equals to x3 is equals to x4 is equals to 0. सब के सब 0 होते हैं. ठीक है, and then it tries to figure out that where to move, and what do we have कि जितने भी आपके constraints होते हैं that makes a feasibility region, and that feasibility region consists of some corner points. तो ये जो एल्गोरिदम होता है, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, जिसे लूप्स मतलब 1-2 कॉर्नर पॉइंट्स और अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि x1 एक्सिस, x2 एक्सिस, यानी जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके अलोंग भी होता है, और एक स्पेस के अंदर भी होता है, द स्पेस विच इज मेड बाय ऑल दिस एक्सिस. तो इस सारे इन लूप्स को चेक करता है एल्गोरिदम, और फिर उस पॉइंट पर स्टॉप करता है जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए. तो ये सारा एल्गोरिदम है. अब ये जो मूवमेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे इस वक्त बताई डायग्राम के हिसाब से, ये जो मूवमेंट है सिंप्लेक्स मेथड में, ये आइटरेशंस होती हैं. ठीक है, और आइटरेशंस जो है वो क्या होती हैं कि सबसे पहले आप लिखते हो नंबर 1, यू राइट डाउन द एलपी प्रॉब्लम इन अ टेबल. आप एक टेबल में लिखते हो. ठीक है, देयर इज अ मेथड व्हिच आई विल एक्सप्लेन. देन you try to figure out what is your entering variable and what is your leaving variable. ठीक है, और इसका भी जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. उसके बाद नंबर 3 पे आप जो काम करते हो कि यू बेस्ड ऑन दैट यू फिगर आउट व्हाट इज पिवट रो, पिवट कॉलम एंड pivot element. Okay, pivot element. So what do you do? pivot element को आप 1 बना देते हो, और जितने भी जो है pivot element के नीचे चौथे पे मैं क्या करूँगी? pivot element is converted into 1. किस तरह से? by row operations. Okay, और जो बाकी होती है ना कॉलम, यानी कॉलम, कौन सा कॉलम? एंटरिंग वेरिएबल का जो कॉलम है, एंटरिंग वेरिएबल कॉलम इज कन्वर्टेड इन सच अ वे दैट पिवट एलिमेंट is 1
and all other entries are zero. ठीक है, ये क्लास में हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, तो ये हम करते हैं, राइट। तो ये सब कुछ कैसे करते हैं, फॉर दैट वी यूज रो ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन क्या होते हैं, रो ऑपरेशन 3 ही होते हैं। नंबर 1 पहला होता है k टाइम्स r I। व्हाट डज इट मीन, दैट वी कैन मल्टीप्लाई एनी कांस्टेंट or we can divide any constant, right? K can be a number of 2, it can be a number 1 by 2. So if we are taking it 2, so it's just a multiplication, and if we are taking out 1 by 2, so इसका मतलब है it's a division. But this is the way we write this row operation, that we can multiply any row with any constant number. Second क्या होता है कि we can interchange rows. अच्छा, ये वाला रो ऑपरेशन जो है वो जनरली यूज नहीं होता यहाँ पर इसमें, यानी आर आई रो इक्विवेलेंट टू आर जे का मतलब है ये जो है ये साइन सिंबल होता है, इसको कहते हैं रो इक्विवेलेंट, कि आर आई और आई जे को इंटरचेंज कर दें तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। तीसरा ऑपरेशन जो है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो है जी आर आई को अगर रिप्लेस कर रहे हो, यानी आर आई इज रो इक्विवेलेंट। रो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि वी आर चेंजिंग एनी रो बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस. So that row operation will change that row, and that row is equivalent to the new numbers which we get after applying the row operations. For example, ये जो होता है ये होता है जी आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, मतलब हमने jth रे को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसमें आर आई को ऐड किया, तो हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, आर आई को रिप्लेस कर रहे हैं। तो आपके रो ऑपरेशन में ith रो का जो रो है ना वो उसका नंबर पहले आना चाहिए, ये बात बस याद रखनी है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड अप्लाइंग दीज रो ऑपरेशंस एंड ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम z एंड व्हाट कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइज दैट कंडीशन। तो हमने क्या करना है, पहले इसको हमने टेबल फॉर्म में लिखना है। अब इसमें दो चीज़ें और समझने वाली हैं। टेबल में जब लिखते हैं तो हमने बनाने होते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो एक चीज़ होती है बेसिक वेरिएबल और एक होता है नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक में क्या फ़र्क है, तो बेसिक वेरिएबल इज नॉन ज़ीरो वेरिएबल, इट इज़ नॉन ज़ीरो वेरिएबल, एंड नॉन बेसिक आर ऑल ज़ीरो वेरिएबल्स, ठीक है। ये एक फ़र्क आप याद कर लो। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसे कन्वर्ट करना है। So for that I need a question. The question is right in front of us. So just a minute, I'm just transferring this whole data. Let's see if I can do it. Yes. So we have this question, right? And I have what? कितने variables हैं? देखो, the variables I have are so the variables क्या है? Variables है जी z, x1, x2, x3, x4, ये तो 4 वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, ठीक। इसके अलावा जब हम इन कांस्टेंट को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये वाली जो सारी साइड है ना, ये सारी साइड लेस है और ये ग्रेटर है। तो अगर हमें इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है समथिंग हैज़ टू बी एडेड ऑन दिस लेफ्ट साइड सच दैट दिस साइड बिकम्स इक्वल्स टू दैट साइड। सो प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं, हम x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 4x4 प्लस s1, ठीक है। अब s1 हमने इसमें स्लैक वेरिएबल डाला है एंड दैट विल मेक इट इक्वालिटी ऑफ द साइड। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में कौन से वेरिएबल डालेंगे, s2, इसमें कौन सा वेरिएबल डालेंगे, s3। तो इसका मतलब है अब हमारे मॉडल में 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ऐड हो गए और वो कौन कौन से हुए, s1, s2, s3। तो आपका जो टेबल बनेगा ना उसमें एक z का कॉलम होगा, फिर x1 का कॉलम होगा
फिर x2, फिर x3, फिर x4, फिर आपके जो स्लैक वेरिएबल्स हैं उनके कॉलम्स होंगे। उसके बाद आपका जो आता है ना, वो आता है एक और कॉलम, उसे कहते हैं सोल्यूशन, और अगला जो कॉलम है वो रेशो है, और ये वाला कॉलम हम कैलकुलेट करते हैं टू डिसाइड कि व्हाट इज लीविंग वेरिएबल। ठीक है जी। तो चले मैं अब इसके हिसाब से ना आपका टेबल बनाना शुरू करती हूँ। सो इफ आई एम मेकिंग दैट टेबल, सो व्हाट डू आई हैव, इसको पहले हमने कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट टू जी को भी करना होता है और इसको भी करना होता है। कैसे करेंगे? सो आपकी जी इक्वेशन जो है, यू विल ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द राइट साइड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। हर चीज़ जो है वो लेफ्ट साइड पर ही होगी। ठीक है, सिर्फ नंबर्स राइट साइड पे रह जाएंगे। तो अगर मैं जी इक्वेशंस को इस तरह से चेंज करती हूँ, अभी इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, हम पहले इक्वेशंस को हैंडल कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा z माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 माइनस 5x4। ठीक है जी। अब आप देखो इसके अंदर ना s कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 एंड दैट इज ऑल इक्वल्स टू, क्योंकि हमने सब कुछ सारा इधर पे शिफ्ट कर लिया है, इट इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव, ये है, इसको कहते हैं जी रो। जी रो का मतलब जीरो नहीं, जेड रो। ओके, जेड रो है। उसके बाद हम इसे ऐसा करते हैं कि हम इसको नाम दे देते हैं। इस रो को हम कह देते हैं, लेट्स से देयर आर मल्टीपल, हम इसे कॉन्स्टेंट 1 रो कह देते हैं। ठीक है, इसे हम कॉन्स्टेंट 2 रो कह देते हैं, और इसको हम कॉन्स्टेंट 3 रो कह देते हैं। तो अगर मैं कॉन्स्टेंट 1 रो को इसी फॉर्मेट में करूँ, सो दैट आई हैव टू ब्रिंग इन the slack variable just to convert it into equality, and as well as remaining s variables should also be there, so that every equation contains all the variables which are present in the model, right? So पहली equation does not contain any z, तो ये तो था ना 1 times z, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 0 times z। ठीक, अब आप देखो मैं सेकेंड इक्वेशन यानी C1 रो जो इक्वेशन है उसको मैं ऐसे कन्वर्ट करूंगी कि चाहे अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है तो वो 0 के साथ डाल दूंगी, और जो प्रेजेंट है ना उसको एज इट इज रहने दूंगी। सो व्हाट आई हैव, 0 टाइम्स z1 प्लस x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 4x4 प्लस 1 टाइम s1 प्लस 0 टाइम s2 प्लस 0 टाइम s3 एंड दैट इज इक्वल्स टू, राइट साइड पे क्या पड़ा है 40। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ये हमारी C1 रो जो है वो चेंज हुई है। अब मैं C2 कॉन्स्टेंट 2 रो को चेंज करूँगी, एंड क्योंकि उसमें भी z नहीं है तो 0 टाइम्स z प्लस 2x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस 2x4 प्लस 0 टाइम्स s1 प्लस 1 टाइम s2, क्योंकि अब सेकेंड इक्वेशन है तो दूसरा स्लैक वेरिएबल आएगा, तो s1 के साथ 0 पड़ेगा और s2 के साथ 1 आ जाएगा, 0 s3 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 8। ओके, ये स्क्रीन से बाहर चला गया, बट यहाँ पे मैं 8 लिख देती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। उसके बाद अगली क्वेश्चन क्या है, C3 रो। C3 रो को जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0z, क्योंकि उसमें भी z नहीं पड़ा हुआ, 4x1 माइनस 2x2 प्लस x3 माइनस x4 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 1s3 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 10। इक्वालिटी आ जाएगी। अब मैंने मॉडल को कन्वर्ट कर दिया। अब नाउ आई एम इन पोजीशन टू राइट इन टर्म ऑफ अ टेबल। तो मैं टेबल लिखने लगी हूँ। ठीक है जी। अब देखो कैसे लिखना है, जितने यहाँ पे नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, जितने वेरिएबल्स उतने कॉलम्स बनेंगे। यानी पहला तो कॉलम बनेगा कि नंबर रो की आइडेंटिफिकेशन होगी। तो भाई हमारे पास कितनी रोज है, एक हमारे पास जी रो है, एक हमारे पास C1 रो है, एक हमारे पास C2 रो है, ये सिर्फ रो की आइडेंटिफिकेशन के लिए, और एक हमारे पास C3 रो है। इसका कोई और काम नहीं है, क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है हमारे अपनी। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि लेट्स ब्रिंग इन एक्सेल, वहाँ पे मैं लिखती हूँ। ठीक है, सो कंट्रोल N ड्रैग करो। सो हियर वी गो विद अ न्यू, इसको छोटा कर लेते हैं और इसको साइड पे कर लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एंड
लेट्स मेक इट मोर क्लोजर ताकि हो जाए, एंड लेट्स डूइंग द सेम क्वेश्चन, एंड लेट्स स्मॉल, ये आ गया, छोटा भी कर लेते हैं हम, यहाँ से बी से आएगा, बी स्मॉल, माइनस जूम आउट कर लो, ये बात ओके। चलो ट्राई करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे रो आइडेंटिफिकेशन करूँ, ठीक है, रो की आइडेंटिफिकेशन। तो मेरी पहली जो है वो रो है इट इज जी रो के बाद C1 रो, C2 रो, उसके बाद C3 रो, ठीक है। ये हमने रो आइडेंटिफाई कर ली। इसके बाद अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे। पहला हमारा वेरिएबल देखो Z, X1, X2, X3, X3 के बाद X4, फिर S1, S2, S3। तो ये सारे वेरिएबल्स लिखने हैं। तो Z, X1, X2, X3, X4 हो गया। अब क्या रह गया? S1, S2, S3, S3 तक किया ना। उसके बाद हमें पता है कि हमें क्या लिखना होता है। S3 के बाद हमें लिखना होता है सोल्यूशन, और फिर उसके बाद हमने कौन सी चीज़ करनी होती है? रेशो। ये सारे कॉलम हमारे पूरे हो गए। अच्छा जी, अब हम करते हैं ऐसे कि मैं इसको कर लेती हूँ बोल्ड कर लेती हूँ। ये टाइटल है और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ये भी है टाइटल, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ओके, तो ये अब हमारे पास हो गया। अब इसमें एंट्रीज डालना शुरू कर दें। तो अब देखो ये आपके सामने यू कैन सी कि जी का कॉलम में क्या आ रहा है? 1 0 0 0 4। 0 में सिर्फ यहाँ 1 होगा, बाकी सब जगह पे क्या होगा? 0 0 एंड 0। व्हाट हैपेंड? अच्छा, C1 रो किधर चला गया? मिस हो गया, यहाँ पे मैंने गलती की है या कुछ ग्लिच हुआ है। C1 रो, C2 रो और C3 रो अब सही है, हाँ। और ये 1 0 0। अब X1 के कॉलम में चेक करें, -2 1 2 4, ठीक है, बिल्कुल ये सही से उतारना है। -2 पहली इक्वेशन में है, -2, फिर क्या है? 1, फिर क्या है? 2, और फिर क्या है? 4। अब हम ऊपर चलते हैं, X2 के ऊपर चेक करते हैं। X2 है -1 2 -1 -2, सो इस -1 2, नेक्स्ट क्या है? -1, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? -2 हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। X3 के कॉलम में क्या है? X3 का कॉलम जो है ये पड़ा हुआ है 3 2 1 1, सो ऐसे ही लिखेंगे 3 2 1 एंड 1। X3 का कॉलम भी हो गया। अब X4 के कॉलम में चेक करें क्या है? -5 4 2 -1, -5 4 2, और लास्ट क्या है? -1। तो ये भी हो गया। उसके बाद किस पे जाना है? अब आप देखो S वाली जो है ना, इसको चेक करो जरा। S वाली, ये तो पहली लाइन तो 0 0 है, इसमें S है ही नहीं। लेकिन जहाँ पे S है पहली इक्वेशन में, इसके साथ 1 है, फिर 1 0 0 आ रहा है, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। तो पहली लाइन में तो सारे 0 जी आएंगे ना, क्योंकि 0 के अंदर, Z रो के अंदर कोई भी हमारे पास S नहीं था, तो S होता ही नहीं है। S स्लैग वेरिएबल का काम तो कांस्टेंट के साथ होता है ना, तो उसके हिसाब से चलेंगे। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए ये बात, ठीक है। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देती हूँ। हमने उस क्वेश्चन का हमारा काम खत्म हो गया, उसको छोड़ देते हैं और हम इसको अभी यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से नहीं आ रहा, ऐसे बड़ा ही रखते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि ये हमारी स्क्रीन को कवर करे। यस, दैट्स राइट, दैट्स बेटर।
ये बात, और इधर से भी, ठीक है। अब चले, तो अब ये है जी, क्या आएगा, 1 0 0, ठीक है। ये क्या आएगा, 0 1 0, और ये क्या आएगा, 0 0 1, ओके। और सोल्यूशन में क्या आएगा, जब सब जी का जो सोल्यूशन होता है ना पहला, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ ना, इधर पे ना एक लाइन बना लेती हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को ना समझ आ जाए इसको अलग अलग कैसे करना है। ये लाइन बना लेते हैं, ठीक है जी। और ये लाइन बन गई, सही है। और इधर भी लाइन बना लेते हैं, और लाइन स्टाइल बॉर्डर ज़रा उल्टा कर देते हैं, एक लाइन इधर आ गई, एक इसको हम अलग कर लेते हैं, एक हम इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, और एक हम इसको अलग कर लेते हैं। ओके जी, वी आर डन विद द लाइंस। अब ओके, तो इसको डिस्टिंग्विश कर लिया है। और सोल्यूशन में क्या होगा, जी का सोल्यूशन पहले तो होता 0 है, ठीक है। और यहाँ कांस्टेंट में क्या आएगा, कांस्टेंट में यही आएंगे कांस्टेंट जो आपके पास यहाँ गिवन है, 40 और फिर 8 और फिर 10, 40 और फिर 8 और फिर 10। तो ये हमने क्या किया है, ये अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है कि हमने अपने मॉडल को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, एंड नाउ द मॉडल इज रेडी टू गो फॉर द सिम्प्लेक्स मेथड। And now first thing which we have to do is to see what is a entering variable and what is a leaving variable. तो entering variable का क्या रूल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। entering variable रूल जो है वो एक ही है, क्या, look at z row and find the maximum negative number. Do you see that? So in the 0 it's 1 minus 2 minus 1 3 minus 5 0 0 0। सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर क्या आइडेंटिफाई हुआ, ये नहीं हुआ, चलो जी इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी बन गई एंटरिंग वेरिएबल 1। कौन सा वेरिएबल एंटर होने वाला है, x4 एंटर होने वाला है, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अच्छा जी, x4 एंटर होने वाला है, तो हम इसको जरा हाईलाइट कर देते हैं ब्लू कलर से ताकि पता चल जाए। अब लीविंग वेरिएबल कैसे देखना है, लीविंग वेरिएबल ये करते हैं कि देखो लीविंग वेरिएबल जो होते हैं ना वो होते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर एक कॉलम मिस कर दिया, वेट फॉर मिनट, यहाँ पर एक कॉलम मिस हुआ है जो हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं वो भूल गई, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ कॉलम, ठीक है। आप लोगों को मैंने क्लास में बताया हुआ है, तो डोंट वरी, इंसर्ट करते हैं कॉलम को, कॉलम इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये किस किस के ये वेरिएबल्स थे, ये थे जनाब, ये z की रो थी, तो इस कॉलम का नाम होता है z, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है, ये हमारे पास कौन सा कांस्टेंट 1 था, तो ये स्लैक वेरिएबल 1 आ जाता है, ठीक है। और ये स्लैक वेरिएबल 2 आ जाता है, और ये स्लैक वेरिएबल 3 हो जाता है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ से ये छोटी सी एक चीज़ मिसिंग थी, तो ये मैंने एंटर कर दी। इसको भी मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना वो लाइन बना देती हूँ, सॉरी इस पर ना लाइन बना देती हूँ ताकि ये डिस्टिंग्विश हो जाए उसके साथ जो हम पहले काम कर रहे थे, ये वाला, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अच्छा, देखो कि इसमें ये 4 वेरिएबल्स हैं, तो एंटरिंग वेरिएबल तो हमने डिसाइड कर दिया सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर। अब लीविंग वेरिएबल डिसाइड करना है, तो उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ती है। रिमेंबर गाइस, लीविंग वेरिएबल जो होता है ना, इन तीनों में से कोई होगा, ये जो स्लैक वेरिएबल्स है ना, इनमें से कोई होगा, ठीक है। द गेम इज बिटवीन स्लैक वेरिएबल्स एंड xi वेरिएबल्स, इट्स नॉट अबाउट s1 s2 s3, ओके। यानी कि यहाँ पर आपका स्लैक वेरिएबल डिलीट होगा, चले जाएगा, और xi एंटर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर स्लैक वेरिएबल 1 गायब होता है, अभी हम देख लेते हैं कौन सा गायब होता है, तो रेशोज निकालते हैं। तो इस रेशो की कोई जरूरत नहीं होती, हम रेशोज इसके लिए, क्योंकि डिसीजन किन पे करना होता है, इन 3 पे करना होता है ना, तो रेशोज भी इन्हीं की चाहिए होती है। तो रेशो किस चीज़ की, जो आपका दिस इज कॉल्ड, ये जो है ना, ये वाला कॉलम, इसे कहते हैं पिवट कॉलम, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पिवट कॉलम। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ किसी डिफरेंट कलर के साथ, ये आ गया, राइट। दिस इज कॉल्ड पिवट कॉलम,
ठीक है जी। और उसके बाद हमें ना ये देखना होता है पिवट कॉलम के एलिमेंट्स को। सो रेशियो क्या चीज होती है, रेशियो का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। रेशियो इज इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, सोल्यूशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स ऑफ एंटरिंग वेरिएबल। जो एंटरिंग वेरिएबल के जो कॉलम है ना उसके जो कोफिशिएंट्स बने वो होते हैं। ठीक है जी। तो अब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले जी के लिए कुछ नहीं होता, यहाँ पे मैं फॉर्मूला कैलकुलेट करूंगी। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। फॉर्मूला इज दिस, सॉरी